Hello, class 1. How are you? I hope you are all fine and happy. Yes, class 1. Open your book, page number 46. Unit 29. The Fox and the Crow. जी, सबने फॉक्स एंड क्रो की स्टोरी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो आज मिस फौजिया आपको मैं फॉक्स एंड क्रो की स्टोरी सुनाएंगी. फॉक्स मीन्स लोमड़ी. सी द पिक्चर ऑफ फॉक्स. एंड क्रो इज अ बर्ड. कौवा. यस. Write down the date on page number 46. Yes. Exercise A. Read the sentences given below. Underline all the naming words and describing words in the sentences. Now, read with me. This is Mr. Fox. He has a bushy tail. See the picture of Mr. Fox. The tail. This is the tail of fox. Fox has a bushy tail. बहुत अच्छे घने बालों वाली दुम. Tail is the naming word and the tail is bushy. Describing word. Tail कैसी है? Long tail भी हो सकती है, short tail भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर tail कैसी है? Bushy tail. The fox has a bushy tail. He is a clever animal. Fox जो है वो बहुत चालाक होती है. Animal is a noun. Clever is a describing word. Okay, underline tail, bushy, underline clever, animal. All of you understand? Now underline. This is Mr. Crow. Crow means कौवा. He has black feathers. कौवे के कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का बर्ड होता है. उसके feathers मीन्स पर. क्रो के feathers कैसे होते हैं? ब्लैक. नेमिंग वर्ड feathers. feathers मीन्स पर. What is the color of feathers? Black. Yes. He is a silly bird. क्रो को सिली बर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फॉक्स ने क्रो को बेवकूफ़ बनाया था. सिली मीन्स सीधा साधा बर्ड. बर्ड अंडरलाइन सिली. बर्ड अंडरलाइन ब्लैक feathers. This is the branch of a tree. branch of a tree. This is called the branch of a tree. दरख्त की शाख. Underline branch, underline tree. Mr. Crow is sitting on the branch. See the picture? Where is the bird sitting? The bird is sitting. Mr. Crow is sitting on the branch of a tree. इस वक़्त branch of the tree जो है ये एक place का नाम है. किस जगह पर कौवा बैठा हुआ है? He has a piece of cheese in his beak. जी, piece means छोटा सा टुकड़ा. जाहिर है क्रो की बीक के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ तो हो नहीं सकती. एक छोटा सा पीस है चीज़ का. चीज़ सबको पता है. बीक के क्या मीनिंग होते हैं? चोंच. कौवे की चोंच में क्या है? एक छोटा सा चीज़ का पीस है, एक टुकड़ा चीज़ का है. अंडरलाइन ब्रांच ट्री. सेकेंड लाइन अंडरलाइन ब्रांच. थर्ड लाइन
peace, underline cheese, underline B. Class 1, open your English language copy. Write down the date. Yes, write down chapter 29, Mr. Fox and Mr. Crow. Yes, now draw margin in the center of the page. Write down naming words, describing words. Now, check first line. Bushy is a describing word and tail is a naming word. Bushy is a describing word and tail is a naming word. Second line, clever. Clever is a describing word and animal is a naming word. Animal कैसा है? Clever है. Fox कैसा animal है? Clever है. Fox की tail कैसी है? Bushy है. Yes. Next line. Mr. Crow has black feathers. Mr. Crow के feathers कैसे हैं? Black हैं. उसके पर कैसे हैं? Black हैं. Mr. Crow is a silly bird. Bird is the naming word and silly is the describing word. Yes. Next. This is the branch of a tree. Yes. Next line. Branch, tree. Mr. Crow is sitting on the branch. Write in new line, branch. And the last line, he has a piece of cheese in his beak. Now 3 naming words are there. Now write down. First naming word, piece, tukda. Second, cheese. Beak, chonch. Complete your do the exercise A in English language copy and complete. Only underline naming words and describing words in grammar tree book. Class 1, come on. Read the story with me. All of you put your finger on the page and read with me. सब reading करेंगे? Yes. Exercise B. Mr. Crow was sitting on the branch of a tree. Mr. Crow जो हैं वो एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए थे. He had a piece of cheese in his beak. और उनकी चोंच में क्या है? पीस ऑफ चीज़, छोटा सा चीज़ का एक टुकड़ा उन्होंने चोंच में लिया हुआ है. मिस्टर फॉक्स सॉ मिस्टर क्रो. मिस्टर फॉक्स ने क्या देखा? मिस्टर क्रो को देखा था. मिस्टर फॉक्स वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने क्या देखा? मिस्टर क्रो ब्रांच पे बैठे हुए हैं ट्री के ऊपर और उनके बीक में क्या है? पीस ऑफ चीज़. ही वॉन्टेड द पीस ऑफ चीज़. और फॉक्स का क्या दिल चाहा कि ये चीज़ तो मैं ही खा लूँ. और फॉक्स तो बहुत क्लेवर होती है, तो उसने क्या कोशिश की कि ये चीज़ मुझे कैसे मिलेगा. मिस्टर फॉक्स वॉज आ क्लेवर एनिमल. अब उन्होंने चालाकी सोची. ही टोल्ड मिस्टर क्रो that Mr. Crow was a beautiful bird. फॉक्स जो है उसने मिस्टर क्रो से बातें शुरू कर दी और क्या कहा कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं. ही टोल्ड मिस्टर क्रो. उन्होंने मिस्टर क्रो को बताया फॉक्स ने कि वो बहुत खूबसूरत बर्ड हैं. ही सेड दैट
मिस्टर क्रो could also sing very well। और मिस्टर फॉक्स ने क्या कहा कि मिस्टर क्रो बहुत खूबसूरत हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। सो ही विश टू हियर मिस्टर क्रो सॉन्ग। और उन्होंने कहा कि आप तो इतने खूबसूरत हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं। विश के मीनिंग क्या है? मेरा ख्वाहिश होना। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपका गाना सुनूं। हियर मीन्स सुनना। मिस्टर क्रो वॉज अ सिली बर्ड। मिस्टर क्रो जो थे वो फॉक्स की चालाकी को समझ नहीं सके, वो सीधे साधे हैं। ही फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन ही हर्ड वॉट मिस्टर फॉक्स सेड। और क्रो जो था वो सीधा साधा, वो सुन के बहुत खुश हो गया। फेल्ट मीन्स महसूस करने लगा, वेरी हैप्पी उसे बहुत खुशी हुई। व्हेन ही हर्ड जब उसने सुना कि मिस्टर फॉक्स तो उसकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। ही ओपेंड हिज बीक टू सिंग। और क्रो ने क्या किया था? उसने फ़ौरन अपना मुंह खोल दिया। बीक टू सिंग, उसने अपनी चोंच खोल दी गाना गाने के लिए। जाहिर है जब वो गाना गाएगा तो उसकी चोंच भी हिलेगी। द चीज़ फेल डाउन। क्रो स्टार्टेड ओपन हिज बीक टू सिंग। The cheese fell down from his beak. Mr. Fox picked it up and ran away। यही तो मिस्टर फॉक्स की चालाकी थी। जैसे ही क्रो ने गाना गाने के लिए अपनी बीक खोली और चीज़ फेल डाउन, चीज़ का पीस जो था वो उनकी बीक से गिर पड़ा। और क्या हुआ? मिस्टर फॉक्स पिक्ड इट अप। और फ़ौरन मिस्टर फॉक्स ने वो पीस ऑफ चीज़ जो था वो उठा लिया था। एंड रैन अवे, और चीज़ खाकर फॉक्स भागे। क्लास 1 स्टोरी अच्छी लगी जी? रीड द स्टोरी 2 times बाय योर सेल्फ। पढ़ेंगे ना सब लोग? खुद रीडिंग कर सकते हैं? यस बेटा, ट्राई टू डू रीडिंग बाय योर सेल्फ। यस, नाउ डू एक्सरसाइज सी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स टेकन फ्रॉम द स्टोरी। आपने स्टोरी पढ़ी, अब इस स्टोरी में से आप ढूंढ कर आंसर निकालेंगे। पिक आउट द आंसर वर्ड्स एंड राइट एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स। मिस्टर क्रो sat on the branch of a tree। मिस्टर क्रो एक दरख्त की शाख पर बैठे हुए थे। He had a piece of cheese in his beak। और उनकी चोंच में क्या था? एक छोटा सा चीज़ का टुकड़ा। मिस्टर फॉक्स wanted the cheese। मिस्टर फॉक्स ने क्या कोशिश की कि उन्हें ये चीज़ मिल जाए। He was a clever animal। मिस्टर फॉक्स तो बहुत चालाक हैं। He told Mr. Crow to sing। और मिस्टर फॉक्स ने क्या चालाकी की कि उन्होंने मिस्टर क्रो से कहा कि मैं आपका गाना सुनना चाहता हूँ। मिस्टर क्रो ओपन हिज बीक टू सिंग। और क्रो जो था वो सीधा साधा, उसने क्या किया कि गाना गाने के लिए जैसे ही अपनी बीक खोली, द चीज़ फेल डाउन। और क्रो के बीक से चीज़ जो था उसके मुंह में वो नीचे गिर गया। मिस्टर फॉक्स पिक्ड इट अप। और मिस्टर फॉक्स ने फ़ौरन क्या किया? फ़ौरन वो चीज़ उठा लिया। एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गया। यस, कंप्लीट
fill in the blanks in your grammar tree book. Exercise D. Can you answer these question? Class 1, आपने स्टोरी पढ़ी है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ली हैं. कोशिश कीजिए आंसर खुद लिखने की, ठीक है. वैसे मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, लेकिन ट्राई टू राइट द आंसर बाय योर सेल्फ. ट्राई टू फाइंड द आंसर, कोशिश तो कीजिए ना. एक्सरसाइज डी. कैन यू आंसर दीज क्वेश्चन? यस. क्वेश्चन नंबर 1. Where was Mr. Crow sitting? जी क्लास 1, आपको पता चल रहा है Where was Mr. Crow sitting? क्रो कहाँ पर बैठा हुआ था? Mr. Crow was sitting on the branch of a tree. जी Mr. Crow कहाँ पर बैठा हुआ था? Branch of a tree, एक दरख्त की शाख पर क्रो बैठा हुआ था. Question number 2. What did Mr. Fox want? Mr. Fox को क्या चाहिए था? Yes. Answer. Mr. Fox wanted the piece of cheese. Mr. Fox को क्या चाहिए था? वो चीज़ का पीस चाहिए था जो मिस्टर क्रो के पास था. Question number 3. What kind of tail did Mr. Fox have? जी, you know what kind of tail Mr. Fox has? Mr. Fox had a bushy tail. Mr. Fox की टेल कैसी थी? बुशी टेल थी. जी क्लास 1, do exercise C and D in your book, and do exercise D question answer 1, 2, 3 in your English language copy. I hope you enjoy the story. Yes, read the story 2 times. Okay, Allah Hafiz. Thank you.